Good morning students, how are you all? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our third session of chapter number 6 named Money. Yes, but before starting, you already know that we always do quick recap of what we learned in our previous session. So in our first session, we learned about exchanging of money, right? And we learned how rupees and paisas are separated with the help of a point, right? In our second session, we learned about addition as well as subtraction of money, right? And today in our third session, we are going to do addition and subtraction of money with the help of story sums. I told you in our last lecture also that we are going to do story sums in our next lecture. So today is the day of story sums. So we are not learning anything new. We are doing the same thing, addition and subtraction only of money, but with the help of some story sums. So let us start. First of all, I have taken two different examples. So we'll learn how story sums are formed and how can we use story sums for addition and subtraction of money. Chalo. So first is Sanjay bought few things. He bought a car for rupees 20. So first of all, I will underline car. I will underline 20 rupees for car. Okay. Then a book for rupees 50. So he bought a book. So I will underline 50 rupees again. And a yo-yo. You all have a yo-yo car at home. A yo-yo for rupees 25. So again I will underline 25. How much he will pay to shopkeeper? So what we will underline? Pay to shopkeeper. And how much? इसका मतलब क्या हुआ? It means कि इसने ये सारी चीजें इतने रुपीज में ली है. अब शॉपकीपर को ये कितना पे करेगा टोटल? हमारे पास टोटल अमाउंट दिया गया नहीं है, सिर्फ पूछा है कि इन तीन चीजों का टोटल कितना होता है और वो शॉपकीपर को कितने पैसे देगा, राइट? सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, यू कैन चेक इट, द सेम क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 181. सबसे पहले यू विल डू एड ₹20, पहले 20 रुपीज एड करेंगे प्लस ₹50, क्योंकि एक 20 रुपीज की चीज ली, एक 50 रुपीज की थिंग ली और एक 25 रुपीज की. सो प्लस ₹25. तो यहाँ पे आप रुपीज लिखोगे एंड देन यू विल एड ऑल दिस थिंग 20, 50 एंड 25. यहाँ पे एडिशन की साइन हो गई. नाउ यू विल डू द टोटल ऑफ इट. 0 plus 0 is 0. 0 plus 5 is 5. So I will write here 5. Again, 2 plus 5 is 7. 7 plus 2 is 9. So क्या हुआ? ₹95. So what is the answer? 95. इसका मतलब क्या हुआ? शॉपकीपर को संजय कितने रुपीस पे करेगा? 95. तो ये जो हमको आंसर मिला उसके सामने we will write he will pay to shopkeeper, right? वो शॉपकीपर को पैसे कितने देगा? He will pay to shopkeeper ₹95. ओके, ऐसे ही आपको लिखना है, the same way. Got it, children? So this is about addition. कैसे पता चला? उसने एक 20 रुपीज की ली थी, एक 50 रुपीज की ली, एक 25 रुपीज की ली और फिर हमको टोटल पूछा कि इन तीनों का टोटल क्या होता है जो शॉपकीपर को देने वाला है. तो हमने ऐसे लिखा, एड ऑल दिस, ही विल पे टू शॉपकीपर दिस मच. ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल. अभिषेक हैड ₹95 विथ हिम. अभिषेक के पास कितने रुपीज थे? 95. सो व्हाट विल अंडरलाइन? हैड ₹95. उसके पास है 95. ओके, ही बॉट कॉर्न्स. कॉर्न्स मतलब आइसक्रीम कॉर्न्स, राइट? ही बॉट कॉर्न्स for ₹20. Underline
25 एंड ₹30। ओके, ये उसके पास ऑलरेडी 95 रुपीज थे। वो 95 रुपीज में से उसने एक कौन 20 रुपीज का लिया, एक 25 का लिया और एक 30 रुपीज का लिया। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितना पैसा बचा है। सो वी विल अंडरलाइन ही हैव नाउ, उसके पास कितना अभी पैसा बचा है, एंड हाउ मच ही हैव नाउ, अब उसके पास कितना पैसा बचा है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, एनी आइडिया, एनी गेसेस? यस, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसने जो ये 3 चीजें ली है, पहले हम इन तीनों का एडिशन कर ले, फिर जो अमाउंट आएगा, जो आंसर मिलेगा, उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पता चल जाएगा कि इसके पास 95 थे, उसमें से इतने रुपीज उसने स्पेंड किए कॉर्न्स लेने में, तो अब उसके पास फाइनली इतना अमाउंट बाकी है। Am I right? So how we will do? First of all, add ₹20 plus ₹25 plus ₹30। अभी मैं यहाँ पे एडिशन कर रही हूँ ऊपर, so that it is easy for you. ओके, तो यहाँ पे रुपीज, ओके, 20, 25, 30, 20, 25 and 30. I will put a sign of addition. Now what is the total? 0 plus 5, 5, 5 plus 0 again 5. Similarly 2 plus 2, 4 and 4 plus 3, 7. So I will write here 7. So what is the answer? Rupees 75. What is this rupees 75? इतना उसने स्पेंड किया, ये आंसर नहीं है। 95 रुपीज में से 75 रुपीज उसने स्पेंड किए। सो व्हाट विल राइट, 75 रुपीज स्पेंड बाय अभिषेक। अभिषेक नेम है, यस, बाय अभिषेक। ओके, अब हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन, हाउ मच ही हैव नाउ। तो हमने इन तीनों का टोटल किया। अब ये जो मनी था, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल ₹95 माइनस स्पेंड कितना किया उसने, ₹75। तो हमको अगर इतना पता है कि टोटल 95 था, उसमें से 75 चीजें रुपीस उसने स्पेंड किए ये चीजें लेकर, तो अब जो अमाउंट आएगा वो कौन सा अमाउंट होगा, वो पैसा उसके पास बचा है वो अमाउंट होगा, राइट। सो नाउ 5 minus 5 is 0. Similarly 9 minus 7 is 2. तो अब जो आंसर मिला ₹20। तो ये कौन सा है अमाउंट, लेफ्ट विथ, मैं यहां पे लिख रही हूं मनी लेफ्ट विथ, इतना उसके पास बचा, लेफ्ट विथ अभिषेक। ओके, सो ये एक ही सम में आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो उसने परचेज किए चीजें उन सबका एडिशन किया, फिर वो जो टोटल अमाउंट आया वो टोटल अमाउंट हमने जो उसके पास टोटल पैसे थे 95 उसमें से माइनस किया। सो यहाँ आप देख सकते हो 95 माइनस 75, तो जो हमको अमाउंट मिला वो कौन सा अमाउंट मिला, उसके पास अब जो पैसे बचे हैं वो अमाउंट, राइट। सो व्हाट इज दैट, ₹20, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज द वे हाउ स्टोरी सम्स आर फॉर्म। आपको एक ही स्टोरी सम में एडिशन भी सिर्फ मिल सकता है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन भी मिल सकता है, या आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे साथ में मिल सकता है, right children? So this is about story sum. Now children, we are going to solve exercise 6.4 on page number 182. So please open your textbook page number 182. Along with this, आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं टेक्स्ट बुक में से, आपको आंसर्स उसके CW में लिखने हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में इतनी स्पेस नहीं है कि आप उसके आंसर लिख सकें, राइट। सो प्लीज जस्ट कॉपी
कॉपी करने की भी आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप CW में लिख सकते हो आंसर 1 एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 182। ओके, और टेक्स्ट बुक में आपको हेडिंग देनी है CW। ओके, ये सारे आपको CW में सॉल्व करने हैं, बिकॉज CW में आपको इसके अलावा ये चैप्टर की कोई वोकेबलरी नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर आपको इस चैप्टर की ऑलरेडी वोकेबलरी आ गई थी। सो दिस ईयर यू डोंट नीड एनीथिंग, देयर इज नथिंग न्यू कि मैं आपको उसमें एडिशनल दूं। ओके, एक्सरसाइज 6.4 पेज 182 क्वेश्चन नंबर 1। I will do few sums, rest you will do as homework. Okay, first question is Sarah has rupees 25 with her. So first of all underline rupees 25. Okay, her father gave her rupees 15. Again underline rupees 15. How much money does she have now? Underline how much she have now. आप अंडरलाइन करोगे मेरे साथ ही विथ पेंसिल, नॉट विथ पेन। ओके, सो इसमें क्या पूछा गया है, सारा हैज 25, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रुपीज, सॉरी यू विल राइट रुपीज 25 प्लस उसके पापा ने उसको कितने दिए, रुपीज 15, रुपीज 15, राइट। अब ये क्या करोगे, एड रुपीज 25 प्लस रुपीज 15, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रुपीज 25 and then adding 15 to it. Now let us do the addition. 5 plus 5 is 10. So 0 over here and 1 will be carried forward. Okay. 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. So what is the answer? Rupee 40. What is the answer? Rupees 40. So हमको क्या लिखना है, फाइनल स्टेटमेंट क्या पूछा गया है, How much money does she have now? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, she has rupees 40 with her. ठीक है, the same way you will write in your book. जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप भी अपनी बुक में लिखोगे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Similarly, question number 2. Nirali bought a chips packet for rupees 15 and a chocolate for rupees 12. How much did she pay to the shopkeeper? Now, question 2 में क्या है, निराली ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अंडरलाइन करना है, बॉट मतलब उसने परचेज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन बॉट, व्हाट शी परचेज, एक चिप्स परचेज की, पैकेट 15 रुपीज का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन 15 रुपीज and a chocolate for rupees 12. So again you will underline rupees 12. How much, again underline how much, always how much is important to underline. How much did she pay to the shopkeeper? So क्या underline करोगे, think how much did she pay to the shopkeeper. pay का मतलब उसने कितना दिया, so आप क्या underline करोगे, pay। शी पे भी कर सकते हो, सिर्फ पे भी करते हो। ओके, हाउ मच शी पे। तो इससे हमको पता चला कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 15 रुपीज की एक चॉकलेट ली, 15 रुपीज की चिप्स ली, 12 रुपीज की चॉकलेट ली, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि उसने शॉपकीपर को कितना पे किया। और टोटल कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग एडिशन, राइट। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट add in your CW. Okay, add rupees 15 plus rupees 12. Okay, again rupees यहाँ पे लिखा मैंने, 15 plus 12. चलो do the total. 5 plus 2 is 7. 1 plus 1 is 2. Okay, तो ये क्या हुआ, रुपी 27। बट व्हाट रुपी 27, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, हाउ मच डिड शी पे। सो व्हाट वी विल राइट, शी पेड, या नेम भी लिख सकते हो, निराली पेड। ओके, वी विल राइट निराली पेड, PAID, पेड उसने दे दिए, निराली पेड रुपीज 27 टू शॉपकीपर।
The same way you will write as I have written on the board. You can check it out. Okay. Now we will be doing question number 3. I am giving you as an homework as well as question number 4. Okay, ये दो आपको होमवर्क में दे रही हूँ. अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? प्रवीण बॉट 1 pencil for ₹12, underline ₹12, and 1 eraser for ₹3, again underline ₹3. दो चीजें उसने ली. वन इज पेंसिल 12 रुपीज की और इरेजर 3 रुपीज का. ओके, इफ ही गेव टू द शॉपकीपर अ 20 रुपीज नोट, हाउ मच मनी वुड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? नाउ यू विल अंडरलाइन अ 20 रुपी नोट. उसको अंडरलाइन करो. ठीक है, और उसके पहले इसमें कहा गया है इफ ही गेव को अंडरलाइन करो. ओके, you have underlined 12 rupees, 3 rupees, gave a 20 rupee note. इतना अंडरलाइन किया ऑलरेडी आपने. How much, again underline how much money would he get back from the shopkeeper? Get back, underline get back. Now आपके पास ये जो अंडरलाइन किए वर्ड्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे आपको स्टोरी सम समझ में आएगा कि ये स्टोरी सम एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मिक्सचर है, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हैं समझने के लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पेंसिल उसने ली है 12 रुपीज की और 3 रुपीज का इरेजर लिया है. अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? और उसके बाद क्या पूछा गया है? इफ ही गेव द शॉपकीपर अ 20 रुपीज नोट, उसके पास 20 रुपीज की नोट थी ऑलरेडी, वो उसने शॉपकीपर को दी. तो हमारे पास ऑलरेडी टोटल अमाउंट तो है कि टोटल 20 रुपीज उसके पास थे, उसमें से उसने शॉपकीपर को दिए और ये दो चीजें ली. तो अब उसको वापस कितने उसके पास रहेंगे? तो ये सम जो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करवाया वही टाइप का है कि दो चीजें जो उसने ली है पहले हम उनका एडिशन करेंगे और फिर वो जो टोटल अमाउंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट add ₹12 plus ₹3. चलो, now first of all we'll add them. ₹12 and 3. Okay, what will be the answer? Very simple, it is 15. So ये क्या मिला? ₹15. ये क्या है ₹15? He है, she है. What is the name? प्रवीण. Okay, he bought. इतनी चीजें उसने ली, so he bought for ₹15. ओके, यहाँ आप लिख सकते he bought things for ₹15. ऐसे भी चल सकता है. He bought things for ₹15. अब हमारे पास क्या है? टोटल अमाउंट उसने शॉपकीपर को 20 रुपीज दिए हैं. सो व्हाट विल राइट? टोटल मनी गिवन टू शॉपकीपर. टोटल अपने किए कितने दिए हैं? 20 रुपीज. ₹20, राइट. अब उसमें से हमको क्या करना है? माइनस ही बॉट, माइनस द थिंग्स ही बॉट, राइट. तो कितने की थिंग्स ली उसने? ₹15. ₹15. तो हमारा आंसर क्या आया? 20 minus 15. अगर आपको डायरेक्ट लिया था तो करो, अदरवाइज कैरी बोरो करके करो. 0 minus 5 इज नॉट पॉसिबल, सो इट विल गिव 1 over here. यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे 1 रहेगा. 10 minus 5 is 5, राइट. 1 minus 1 is 0. सो आंसर क्या आया? ₹5. तो ये जो ₹5 आया ये क्या आया? हमको क्या पूछा गया था? हाउ मच मनी वुड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, ये हमको पूछा गया था. तो ये जो आंसर आया दैट इज ही विल गेट बैक ₹5
फ्रॉम किसके पास से, शॉपकीपर. ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस स्टोरी सम. आपको अभी लगेगा कि बहुत बड़ा है, बट आगे और बड़े बड़े सम्स आएंगे. आपको अभी से अगर प्रैक्टिस होगी स्टोरी सम्स की, तो ही आप थर्ड में फोर्थ में अच्छे से कर पाओगे. राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व. मैंने 1, 2 और 5 बोर्ड पर सॉल्व किए हैं. प्लीज कॉपी इट द सेम वे आई हैव डन इट. और इसी तरह से आपको क्वेश्चन 3 और 4 करना है. सेम वे, इट इज वेरी इजी. यू कैन डू इट योरसेल्फ and I know you will do it the way as I have done. Right? So with this children, we come to an end of our session, and the homework for the day is question number exercise 6.4, question number 2 and question number 3 in CW. Please complete it in CW, okay, not in your textbook. Okay, और टेक्स्ट बुक में आप ऊपर CW लिख देना, ताकि आपको भी पता चले कि ये सारे CW में ही करने हैं. Okay, so bye for now.